Om Shanti. Welcome all of you. And before we start, we'll spend a minute in silence to invoke the Supreme Being. So, good morning to all joining from the eastern part of the world, and good evening to those joining from the west coast of the Vancouver, Canada, and the other parts of the world. And welcome all of you to the spiritual significance of Ganesh Chaturthi. As all of you know, this is a special life events, what we call Values for Life series, special events. We have covered already Raksha Bandhan, we have done Janmashtami, and today it is the Supreme Being and his very obedient child, Ganesha. So before we begin, let me just tell you a few things. Why is the name Ganesha? In Gana means in Hindi, it's maths, mathematics, so something to count. So Ganesha means he's the Ishwar or the deity in one way who has been counted as the highest. So it's called Ganesha. I'm sure Meera Didi will cover in detail, but I'll just tell you a few names because in India it's a very auspicious festival. Today is the 11th day. It's also called Ganpati. And I must say, rather we say Gunpati in the sense he's the embodiment of all the virtues. Also Gajanan, it is similar because he's got the tusk of the elephant. Siddhi Vinayak, as all of you know, there's a famous temple in Mumbai, and Siddhi means success. So he's the Lord of success. And you know, we are covering success in our series this time. And three other names, Mangal Murti, who does everything auspicious, Dukharta Sukkarta, which is the remover of all the sorrows and gives us a lot of happiness. And lastly, very important, Vighna Vinashak, which is the destroyer or remover of all obstacles. So there are a lot of stories in the name of Ganpati, and today we are so fortunate we have with us Meera Didi, who will be sharing all the secrets, the spiritual secrets of Ganesh Chaturthi. So with this, I pass it on to Anu sister. Over to you, Anu sister. Okay, thank you. So it's time to welcome Meera Didi. So, dear Meera Didi. ओम शांति। मीरा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमें आप बताने वाले हैं कि क्या रूहानियत छुपी हुई है गणेश चतुर्थी के पीछे, और हम सभी के रिहाफ पे आपको वेलकम करते हैं इस सुंदर फूलों के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मीरा दीदी। और एक और चीज, जब भी हम गणेश जी के बारे में सोचते हैं सब बच्चे, एंड भी हम देखते हैं कि जब गणेश जी का नाम आता है तो उनके आगे प्लेट में बहुत सारे बूंदी के लड्डू रखे होते हैं। तो हम आपके लिए हमने लड्डू बनाए हैं, बहुत सारे प्यार के साथ आपके लिए लड्डू बनाए हैं। थैंक यू मीरा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू सिस्टर। हम सॉन्ग थोड़ी देर में चलाते हैं। हम मीरा दीदी का इंट्रोडक्शन देते हैं, इनके बारे में कुछ बताते हैं। मीरा दीदी
मीरा दीदी हमेशा नई जो अ, हैं नए लोग ज्वाइन करते हैं। तो सिस्टर मीरा ने मीरा सिस्टर ने मैसूर में 1968 में ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन किया था। मलेशिया में वो सारे सेंटर्स की डायरेक्टर हैं और जो एशिया सेंटर है वहाँ की भी वो कोऑर्डिनेटर हैं। जो 1986 में जो मिलियन मिनट्स ऑफ पीस के बारे में था, जो न्यूयॉर्क में हुआ था, वो भी उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था। और दूसरा ग्लोबल कॉर्पोरेशन एक अच्छी दुनिया के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा जानकारी में हैं क्योंकि वो बहुत सारे टॉपिक पे बात कर सकी हैं, बहुत सारे क्लासेस दे चुके हैं और वो बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी बहुत सरल और सहज बना देती हैं। उन्होंने बहुत सारे रूहानी टॉपिक्स को कवर किया है, बहुत सारे आध्यात्मिक टॉपिक्स को। और मैं फिर से एक छोटी-सी पोएम में उनका जॉइन करता हूँ। तो मीरा दीदी जो हैं वो मलेशियन एम्बेसडर हैं। हमारी जीवन यात्रा पर हमारे शिप की वो क्रूसेडर और एम्बेसडर दोनों हैं। शिप के वो कैप्टन की तरह हमें हमेशा गाइड की तरह रास्ता दिखाती हैं। इस राइड पे वो हमारी गाइड हैं और परमपिता को हमेशा अपने साथ रखते हुए और हमें सबको वो प्रेरणा देती हैं कि अपनी कमजोरियों को एक साइड में रखें। और आज गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर जो आज विसर्जन का दिन है, जो इमर्श करते हैं, इस पावन दिन पर आज मीरा दीदी हमें संदेश देंगी और मैसेज देंगी हमें। बहुत सुंदर संदेश है ये। किस तरह से हम गणेश जी की जो सारी खूबियाँ हैं उन्हें अपने में धारण कर सकते हैं, किस तरह हम गणेश जी के समान बन सकते हैं, किस तरह से 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं, अपने सुप्रीम से सारी एनर्जीज को लेकर के हम किस तरह से किस तरह से हम देवता बन सकते हैं, यही आज हमें मीरा दीदी बताएंगी। जो भी हमारे में थोड़े से भी पाप रह गए हैं, उनको भी वो साफ करने के बारे में आज बताएंगी। जो रावण का थोड़ा-सा भी प्रभाव है, वो हमारे पर कैसे हम खत्म कर सकते हैं, हमें आज मीरा दीदी आज ये सब बताएँगी। और इंटरप्रिटेशन है हिंदी में। आप अलग दूसरी भाषाओं में भी सुन सकते हैं। जैसे दिखा रहे हैं कि जिस तरह की भी आप भाषा चुनना चाहें, आप सुन सकते हैं। सो अब से लेकर 1 घंटे तक जो मीरा बहन है वो टॉक देंगे। Translators can please translate those questions in English and send it to me so that I can ask Didi. So that will happen after 45 minutes from now. अब से So 45 मिनट के बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चंस लेंगे। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन। और अब हम मीरा दीदी को निमंत्रित करते हैं। क्या हम गाना चलाएंगे? श्योर। जिनकी आंखों में दीर्घ दृष्टि और दिव्यताओं भरी, जिनका गायन गुणों से हो वो ही तो है गुणपति।
को पराजित कर करे सवारी। ऐसी दिव्यात्मा को ये पूजे दुनिया सारी। ऐसी दिव्य शक्तियों को अपने भीतर तू जगा। विघ्न हरता तू भी बन जाएगा अगर तेरा हो शिव पिता। देव बन जा तू भी आत्मा, होगा जग कल्याण सदा। एक राज्य एक धर्म होगा और एक भाषा होगी यहाँ। होगा सुख और शांति होगी, स्वर्ग बन जाएगा जहाँ। एक राज्य एक धर्म होगा और एक भाषा होगी यहाँ। होगा सुख और शांति होगी, स्वर्ग बन जाएगा जहाँ। तू ही गणेश। Om Shanti. ओम शांति। A very good morning to all the brothers and गुड sisters मॉर्निंग who जो are going सारे to ब्रदर celebrate और भाई और बहन Ganesh जो Chaturthi. हमें गणेश चतुर्थी मनाने के लिए हमें So first of ज्वाइन all, किए I हैं। would like to extend to all of you सबसे पहले मैं सबको many greetings बहुत बहुत for the बधाई देना advanced चाहूंगी celebration इस पावन पर्व of पर, Ganesh गणेश Chaturthi. चतुर्थी के पावन पर्व पर। As Dr. Manoj was mentioning, जैसे this डॉक्टर is the मनोज ने last कहा day कि when आज the आखिर दिन Ganesh है, image will be immersed in the water. सो आज But गणेश जी still की we are not मूर्ति too को late to पानी do में this विसर्जन किया जाएगा। important celebration. फिर भी आज जो है वो And बड़ा I think सेलिब्रेशन का we दिन all है। know आज का that दिन बहुत बड़ा in मनाया India, जा रहा है इंडिया में, Bharat is a भारत में। cradle for ancient civilization. भारत में जो प्राचीन It is सभ्यता in है, Bharat that भारत में there ही are 365 days a year. 365 We celebrate at least जो हैं 364 365 festivals. देवी देवता हैं हमारे, कम से कम Every day 364 seems to अ, be 364 something हमारे special त्योहार because हैं। there is कोई ना something कोई new. कोई ना कोई Every day त्योहार for हर रोज होता है, हर हफ्ते में एक दिन and कोई ना कोई त्योहार होता if you है, look at क्योंकि the इतने देवी Indian देवता हैं। calendar, और अगर आप all इंडियन the कैलेंडर में festivals that are देखें, celebrated जो सारे त्योहार मनाए जाते organized हैं in a very उनकी अपनी systematic way, अपनी and महत्वता all है the और वो festivals बहुत that are अच्छी तरह से celebrated ऑर्गेनाइज has करे हुए certain हैं। customs and systems that और are उसमें being कुछ carried ना out. कुछ जो कस्टम्स हैं या Certain रीति festivals रिवाज are उसमें जुड़े हुए हैं। celebrated. And so, over a period of time, as we continue to worship the gods एक of समय से India, जब से हम देवी we have देवताओं का forgotten पूजन करते आ the रहे true हैं, हम significance भूल गए हैं कि क्या behind the आध्यात्मिक closed रहस्य portals, है और इन symbols that are तस्वीरों के पीछे, cultural. इन साइंस के And पीछे so we are क्या just हमें ये बताना celebrating चाह it रहे because हैं। it has become more हम commercial. सिर्फ जो It has आजकल become more मनाते हैं वो ज़्यादातर sophisticated. कमर्शियल होता गया है। ऐसा And लगता if है we कि बस खाली don't हम एक-दूसरे से understand मिलने के लिए the ही ये spiritual त्योहार मना रहे significance हैं। behind लेकिन यह समझना the बहुत ज़रूरी customs है and कि systems that इसके is पीछे, being इन celebrated रीति-रिवाज़ों के during a पीछे period of a क्या year, आध्यात्मिक so रहस्य that है, we can किसी भी connect it त्योहार with के our लिए। practical life यदि हम ऐसा समझते of हैं, ourselves तो हम अपनी enlighten प्रैक्टिकल जीवन ourselves को and इस enrich our life. इन त्योहारों के साथ So जोड़ सकते हैं। Ganesh Chaturthi तो जो is गणेश one of the चतुर्थी है, most important एक बहुत festivals ही celebrated महत्वपूर्ण in India, त्योहार है, जो हम इंडिया में especially मनाते in हैं। Maharashtra state. स्पेशली Not महाराष्ट्र में to ये say बहुत that ज़्यादा मनाया not जाता just है। Ganesh, Lord Ganesh is worshipped only on Ganesh Chaturthi day. खाली गणेश जी I की ही remember from पूजा my नहीं की childhood, जाती Ganesh गणेश ji चतुर्थी is पर। worshipped even before any other गणेश gods जी की were पूजा worshipped. हर किसी We were
हर किसी देवी देवता से पहले की जाती है। हमारे माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी ने हमें यही सिखाया है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, उसके बाद ही हमें शिव मंदिर में जाना है। और आज भी हम ये देखते हैं कि गणेश जी की पूजा 2 तरीके से की जाती है। एक तो उनकी फ़ोटो के रूप में और एक वो एक सिंबल है स्वास्तिका में। जो व्यापारी हैं, वो कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो वो स्वास्तिका का जो साइन है, वो बनाते हैं। उसका मतलब होता है कि शुभ आपका आपके लिए शुभ भाग्य हो आपका। तो जो लॉर्ड गणेशा हैं, गणेश जी हैं, तो हम हर रोज़ ही इनका आवाहन करते हैं। जब भी हम किसी कोई भी हम कल्चरल प्रोग्राम होता है, कोई भी डांस प्रोग्राम है, तो सबसे पहले हम गणेश जी का आवाहन करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो मुझे याद आ रहा है एक श्लोक जो मुझे बताया गया है जब मैं बहुत छोटी थी। वक्रकुंडम महाकाय सूर्यकोटि नमः। इसका मतलब ये है कि अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं, किसी भी काम को शुरू करने से पहले, तो आपके कार्य में सफलता निश्चित है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि क्या आध्यात्मिक रहस्य है गणेश जी के जो साइन हैं और जिन जो उनके उनको दिखाया जाता है और क्या उनका इतिहास है। सो किस तरह से गणेश जी का जन्म हुआ, मैं आपको ये सब बताऊँगी। तो मैं इनको 3 भागों में डिपाइड डिवाइड करूँगी। जब सबसे पहले की माइथोलॉजिकल स्टोरी इसके ऊपर क्या है, जो हम ये मनाते हैं। फिर दूसरा जो है वो आध्यात्मिक रहस्य क्या है, जो भी चीज़ें हैं। और उसके बाद तीसरा भाग में कि हमें क्या इससे सीखने को मिलता है, क्या हम अपने जीवन में इन गुणों को हम कैसे अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। हमने लॉर्ड गणेश की श्री गणेश की जो कहानी है वो सुनी हुई है। तो जो अ, शिव जी हैं वो तपस्या करने के लिए गए हुए थे। जब वो तपस्या कर रहे थे तो पार्वती जी अकेली थीं, तो उन्होंने गणेश जी का निर्माण किया। अपनी अपनी मिट्टी से उन अपनी मिट्टी मैल से उन्होंने गणेश जी का स्थापना की, उनका निर्माण किया और उनको कहा कि बाहर दरवाजे पे खड़े हो जाना और किसी को भी अंदर नहीं आने देना। जो श्री गणेश जी थे, वो बहुत आज्ञाकारी थे अपनी माँ के, तो वो बाहर जाकर खड़े हो गए और उन्होंने किसी को अंदर नहीं आने दिया। और जैसे ही शिव जी वापस तपस्या करके आए, तो उन्होंने उन्हें जैसे पार्वती माँ ने कहा था, तो उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया। जब शिव जी तपस्या के बाद आए और जो शिव जी थे वो बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने उनका सर गणेश जी का धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती जी ने ऐसा देखा तो उन्होंने कहा कि आपने ये क्या कर दिया? तो शिव जी ने कहा कि वो इसके सर को किसी भी इसको जो भी सबसे पहले वहाँ से निकलेगा, उसका सर जो है वो इनके सर पर लगा देंगे और उनको फिर से जीवित कर देंगे। तो शिव जी ने अ, एक हाथी का सर जो है वो गणेश जी के सर पर लगा दिया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। तो इसीलिए गणेश जी के ऊपर हाथी का सर है। तो ये बहुत एक विशेष कहानी है जो हमें बताती है कि जो गणेश जी हैं, उनके 2 जन्म हुए एक ही शरीर के अंदर।
एक और कहानी है इसके बारे में, गणेश चतुर्थी से ही रिलेटेड है वो। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं ये सुनती थी। तुम्हें सिर्फ तुम्हें जो है चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए गणेश चतुर्थी पे, क्योंकि अगर आप चंद्रमा की तरफ देखते हैं तो आपको श्राप लग सकता है। तो जब मैं सोच रही थी इस कहानी के बारे में, तो गणेश जी अपने घर आ रहे थे, अपने चूहे की सवारी लिए हुए वो अपने घर आ रहे थे, और गणेश जी का जो पेट है वो काफी बड़ा है। तो उस दिन चौथा दिन था, चंद्रमा का चौथा दिन था, तो जो चंद्रमा थे वो हंस रहे थे गणेश जी के ऊपर। जब गणेश जी को बहुत अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपनी इंसल्ट फ़ील की, और उन्होंने कहा कि जो भी इस दिन पर, जो चौथा दिन होगा चंद्रमा का, उस दिन अगर कोई भी चंद्रमा की तरफ देखेगा तो उसको श्राप मिलेगा। तो इसलिए लोग काफ़ी डरते हैं, वो गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा की तरफ नहीं नहीं देखते हैं, नहीं तो उन्हें ऐसा विश्वास है कि उन्हें श्राप लगेगा। और भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं गणेश चतुर्थी के बारे में, तो हमारे पास टाइम की लिमिटेशन होने के कारण हम सारी कहानियाँ तो नहीं बताएँगे। तो इस तरह से गणेश जी का जन्म हुआ। तो वो शिव जी के और पार्वती जी के बेटे हैं। तो गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे मनोज ब्रदर ने भी बताया। हर एक नाम में, हर एक नाम का एक नाम के पीछे एक विशेषता छुपी हुई है, एक दिव्य गुण छुपा हुआ है कि वो विघ्न विनाशक हैं। यानी कि कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी का आवाहन पहले किया जाता है, क्योंकि वो विघ्न विनाशक हैं, विघ्नेश्वर हैं। और कभी-कभी उनको हम विनायक अब कहते हैं, क्योंकि वो शुभ भाग्य के प्रतीक हैं। उन्हें गजानन भी कहते हैं, क्योंकि उनके उनके हाथी की सूंड है। उनको गणपति कहते हैं, क्योंकि उनको कहते हैं नवग्रहों की जब पूजा की जाती है, लेकिन उससे भी पहले गणेश जी का आवाहन होता है। तो पहले अगर हम गणेश जी को खुश करते हैं, तो बाकी सभी नवग्रह और सारे देवी-देवता खुश हो जाते हैं। तो ये विद्या के भी देवता हैं, गुणों के, बुद्धि के दाता हैं। जब मैं थाईलैंड में थी तो मैंने देखा, बहुत ही मेरे लिए मुझे अच्छा लगा, मैं हैरान हुई ये देखकर कि वहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं, वो श्री गणेश की पूजा करते हैं। अपनी अपनी पढ़ाई में सफलता के लिए गणेश जी की पूजा करते हैं। इनको वक्रतुंड भी कहते हैं, और इनको गजानन भी कहते हैं, क्योंकि इनके हाथी की सूंड लगी हुई है। लंबोदर भी कहते हैं, क्योंकि उनका स्टमक, उनका पेट बहुत बड़ा है। इसलिए बहुत सारे नाम गणेश जी को दिए गए हैं। हर एक नाम में एक मतलब छुपा हुआ है। एक हाथ में उनके, हम जब जैसे गणेश जी की पूजा करते हैं, तो हमें ये प्रश्न आता है कि अ, उन्होंने उन्होंने हाथी को ही क्यों चुना? तो शिव जी के पास तो बहुत सारी शक्तियाँ थी, वो तो किसी का भी सर लगा सकते थे, फिर उन्होंने हाथी का ही सिर क्यों लगाया? इसका बहुत एक गहरा मतलब है। इसका मतलब है कि हाथी का सर इसलिए लगाया, उम, हाथी का ही सर क्यों लगाया? क्योंकि जो
हाथी है वो बहुत रॉयल हैं, वो एक ऊँचे होते हैं। जैसे कहते हैं कि हाथी जो है वो एक रास्ते पर जा रहा है और उसके पीछे कितने भी कुत्ते क्यों ना भौंक रहे हों, बार्क कर रहे हों, हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत उनका जो स्वभाव है वो काफ़ी ऊँचा माना जाता है और हाथी को काफ़ी बुद्धिमान माना जाता है और इंटेलिजेंट माना जाता है। किसी भी प्राकृतिक अवस्था में जो हाथी है वो किसी भी तरह की अवस्था को झेल सकते हैं। कोई भी अगर हाथी के पैर के नीचे आ जाता है वो क्रश हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। लेकिन अगर एक छोटी-सी चींटी जो है वो हाथी के कान में चली जाए, तो वो हाथी को परेशान कर सकती है। उसका भी कुछ मतलब है, मैं आपको आगे बताऊँगी। तो जो हाथी की सूंड है, वो उसमें जो गणेश जी में लगी हुई है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो उस सूंड से पूरे एक वृक्ष को हिला सकते हैं। यानी कि इसका मतलब कि हमारे नेगेटिव संस्कार या हमारे जो कमज़ोर स्वभाव संस्कार हैं, उनको हटा सकते हैं। जो हाथी की सूंड है, उसके अंदर बहुत-सी ताकत है, जो असंभव को संभव कर सकती है। बुद्धि और इंटेलिजेंसी के हिसाब से हाथी के अंदर जो पुराने स्वभाव और संस्कारों को बदलने की क्षमता और ताकत ज़्यादा होती है। जो आँखें हैं हाथी की वो बहुत छोटी होती हैं, उसके शरीर के हिसाब से जो आँखें हैं वो बहुत तीखी हैं, लेकिन अगर हम छोटी-सी एक सुई भी गिरा दें, तो उनकी आँखों से हाथी की आँखों से वो देख सकते हैं, क्योंकि वो हाथी को बहुत समझदार और बुद्धिमान माना जाता है। और वो दूरदर्शी होते हैं क्योंकि अपनी आँखों से वो दूर का बहुत देख सकते हैं। कोई भी निर्णय करने की शक्ति उनकी ज़्यादा होती है और उनकी जो बुद्धि है वो विशाल होती है, बुद्धि में दूरदर्शिता होती है और हाथी के जो कान हैं वो बहुत बड़े होते हैं। अगर हमें उनको देखें अगर कोई अंधा व्यक्ति भी हाथी के हाथी के कानों को हाथ लगा दे तो एक एक पंखे की तरह महसूस होते हैं। हाथी के बड़े जो कान हैं वो बहुत ही संवेदनशील हैं। वो खाली अच्छी बातें सुनने के लिए हैं। जो पुरा जो जो अच्छी बातें नहीं हैं, वो नहीं सुनना। जैसे हमने सुना कि ना बुरा देखो बुरा ना सुनो, तो भगवान ने हमें एक मुँह और 2 कान दिए हैं। इसका मतलब है कि हमें कहा गया है कि एक कान से सुनें और दूसरे से निकाल दें। कोई भी व्यर्थ की बातें ना सुनें, जो हमारे दिल तक जाए। इसलिए हाथी का जो स्टमक है, जो पेट है, वो बहुत बड़ा होता है। उसका भी मतलब है, वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि अपने आप में किस तरह से हम समा सकते हैं। जैसे कि एक सागर सब कुछ अपने में समा लेता है। कोई भी परेशानी आए तो उसको कैसे वो अपने आप में समा सकते हैं। जो गणेश जी का स्टमक है, जो पेट है, वो उसको सिंबलाइज़ करता है। यदि कोई भी परेशानी बाहर से आती है, किसी भी तरह की रुकावट, वो उस सब को अपने अंदर ले लेते हैं। इसलिए उनका जो पेट है वो बहुत बड़ा है। लेकिन हम इससे क्या सीखते हैं? हाथी के बड़े पेट से हम सीखते हैं कि
इतना बड़ा उनका स्टमक है, इसका मतलब वो हर चीज को अपने अंदर समा सकते हैं। उसके अंदर समाने की शक्ति है। इसी तरह से वो दूसरों को शुभ भावना और शुभकामना दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान गणेश के 4 हाथ दिखाए गए हैं। जब हम उनकी मूर्ति देखते हैं, उनकी 4 बाहें, 4 हाथ हैं। उसके हाथ में कुछ ना कुछ है। उनके हाथ में कुछ ना कुछ दिखाया है हर तस्वीर में, हर फोटो में। उसका जो है एक आध्यात्मिक रहस्य है उसके पीछे, जो हमें बहुत ज़्यादा एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सारे अपने जो अटैचमेंट हैं, जो कि मोह है इस दुनिया से वो हटा लेता है और अपने आप को रूहानी शक्ति से जोड़ता है। उनके हाथ में एक रस्सी है जो ये बताती है कि अपने आप को किस तरह से रूहानी प्रेम से परमपिता से जोड़ना है। क्योंकि ये जो प्रेम का जोड़ है, अगर मन में भगवान के लिए, परमपिता के लिए स्नेह है और सबके लिए स्नेह है, तो सारी समस्याओं का हल हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि गणेश जी के हाथ में मोदक होता है, लड्डू होता है। इसको मोदक या लड्डू कहते हैं, जो कि गणेश चतुर्थी पर गणेश जी लड्डू नहीं खाते। उनको उनको ऐसा उनको उनके सामने क्यों रखा जाता है? उनके हाथ में क्यों होता है लड्डू? क्योंकि हमें लड्डू जैसा स्वीट बनना है, मीठा बनना है मोदक की तरह। इसका मतलब हमें बहुत ही प्रेम से बोलना है। इसका मतलब कि जैसे मनुष्य का जो शरीर है वो 6 फीट 5-6 फीट का होता है, लेकिन जिह्वा कितनी छोटी होती है। इसका मतलब क्योंकि इस जीभ से जब हम बोलते हैं, इसके द्वारा हम कोई रिश्ते बना भी सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। जैसे भगवान ने जब शरीर बनाया तो जो जीभ है वो दांतों के पीछे रखा हुआ। जो ट जो जीभ है वो एक तरह से कैद है दाँतों के पीछे। मतलब इसका ये है कि जब भी हम कुछ बोलें तो सोच समझ कर बोलें, क्योंकि जिह्वा से रिश्ते बनाए और तोड़े जा सकते हैं। अगर हम कुछ भी बोलें उससे पहले हमें सोचना है। जो भी शब्द हमारे मुँह से निकलें वो बहुत मीठे हों। हम राजयोगा में भी ये प्रैक्टिस करते हैं। 3 बातों की, कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। क्योंकि जो भी शब्द हम बोलते हैं, उस शब्दों का जो सब दूसरों पर काफ़ी गहरा असर होता है, वो उनको ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी गिरा लग सकता है। और चौथे हाथ में गणेश जी हमेशा जो है वो दुआएँ दे रहे हैं, जैसे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं हाथ से। देवता का मतलब देने वाला यानी देवता जो हमेशा देते हैं। श्री गणेश हमेशा जो है आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, जो ज्ञान की बात बताते हैं। तो पूरा दिन चतुर्थी पर जो गणेश जी की पूजा करते हैं, बुद्धि के लिए पूजा की जाती है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम मांगते आए हैं कि हमारी बुद्धि अच्छी हो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये हम मांगते आए हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि जो अज्ञानता है वो भी अंधेरे के समान है।
तो जो श्री गणेश हमें वरदान देते हैं, जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, बुद्धि के हिसाब से हमें वो वरदान गणेश जी से मिलते हैं। जो गणेश जी का शरीर है, इतना बड़ा गणेश जी का शरीर और वो चूहे की सवारी करते हैं। इसका क्या मतलब है कि गणेश जी की सवारी चूहा है। जो चूहा है वो एक तरह से गणेश जी का जो वाहक है, जो सवारी है। इसका मतलब है कि अज्ञानता के ऊपर बुद्धि विधि से अज्ञानता को मिटाना। जब अंधेरा होता है, हम कोई लाइट जलाते हैं तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। और हमें पता है कि माउस जो चूहा है, वो जाकर हर समय कुछ ना कुछ काटते रहते हैं चूहा। जब कोई भी चीज चूहे से कट जाती है, उसको हम ना खा सकते हैं, ना ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो आदत है, वो चूहे जैसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे हर समय किसी न किसी बात में हम अपना अपनी टांग अड़ाते रहते हैं या हम बीच-बीच में बोलते रहते हैं। इसको शो करता है चूहा। और जो चूहा है, वो हर समय खाने के पीछे जो है वो भागता रहता है। उसको थोड़ा-सा भी कुछ खाने के लिए मिल जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे पूरा का पूरा खजाना ही, पूरा का पूरा स्टोर ही खाने के लिए मिल गया। उसको दिखाते हैं चूहे की सवारी जो गणेश जी करते हैं, उसका मतलब है विकारों पर जीत पाना। तो हम जो गणेश चतुर्थी बनाते हैं कि किस तरह कितने भी बुद्धिमान हम बन जाएँ, कितने भी बुद्धिमान हम बन जाएँ, ज्ञान म हमें हमेशा नम्र रहना है। ऐसा कहा जाता है कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो हमेशा यही कहता है वो हमेशा यही कहता है कि मुझे कम आता है। जितना भी ज़्यादा एक बुद्धिमान व्यक्ति को आता है, वो हमेशा नम्रता से कहता है मुझे बहुत कम आता है। और जो देवी-देवताओं को दिखाते हैं कि वो लोटस के एक कमल के पुष्प पर बैठे हुए हैं या कोमल का पुष्प उन्होंने हाथ में उठाया हुआ है, वो हमें ये बताता है कि कि जो कमल का फूल है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन जो उसकी पत्तियाँ हैं, जो पंखुड़ियाँ हैं, उनके ऊपर कोई भी कीचड़ नहीं आता है। वो हमें ये सिखाती हैं, कमल पुष्प हमें ये सिखाता है कि वो कितने भी कीचड़ में रह रहा हो, फिर भी वो बहुत बिल्कुल साफ रहता है। हमें ये सिखाता है, हम अपने परिवार में रहते हुए भी किस तरह से किस तरह से पवित्र एक कमल पुष्प के समान साफ-सुथरा रह सकते हैं। एक तरफ गणेश जी ब्रह्मचारी थे, गणेश जी ब्रह्मचारी थे। भक्ति मार्ग में ऐसा भी लिखा हुआ है कि उनकी 2 उनकी पत्नियाँ दिखाई गई हैं, रिद्धि और सिद्धि। इसका आध्यात्मिक रहस्य है, उनकी कोई पत्नी नहीं थी क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। इसका मतलब क्या है? रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नियाँ थी, इसका क्या मतलब है? हम समझते हैं रिद्धि का मतलब होता है विधि और सिद्धि का मतलब होता है प्राप्ति। जब हमारे में ज्ञान है और बुद्धि है, अगर हम सही विधि या सही तरीका यूज़ करते हैं, सही तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। संकल्प से सिद्धि होती है। अगर मेथड विधि सही है, तो प्राप्ति निश्चित है। अगर विधि सही नहीं है, तो प्राप्ति नहीं हो सकती। जब आपको बुद्धि है, ज्ञान है, निर्णय करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है,
कौन-सा जो विधि है हमें यूज़ करनी है, सही विधि के द्वारा ही हमें सफलता मिलती है। तो वो हमारे साथी बन जाते हैं। सो स्वास्तिका का साइन क्यों दिखाते हैं, गणेश जी का साइन? तो गणेश जी का और स्वास्तिका का क्या संबंध है, हमेशा दिखाते हैं कि गणेश जी को स्वास्तिका के साथ दिखाते हैं। स्वास्तिका का मतलब है जो हमें ये बताता है स्व स्थिति। स्वास्तिका मतलब स्व स्थिति, आपकी स्थिति कि मैं कैसे हूँ। अगर हम वो एरो देखें जिसमें कि स्वास्तिका बना हुआ है कि हम अपने जीवन का शुरू करते हैं सतयुग से त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब हम कलयुग में हैं और और कलयुग से सतयुग में कलयुग से सतयुग में परिवर्तित होना है। सो सतयुग तो स्वास्तिका का मतलब है एक पूरी जो एक साइकिल है उसको वो दर्शाती है। इस पूरे जीवन की साइकिल को समझने के लिए ये स्वास्तिका बनाया जाता है। अगर हमारी में पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्वास्तिका जो है वो बहुत ज़्यादा गणेश जी से इस तरह से संबंधित है। इसका मतलब है स्व स्थिति, आपकी अपनी स्थिति। मुझे याद है कि गणेश जी जब गणेश जी हमारे से बहुत खुश हो जाते हैं, तो वो हमारी सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं। ऐसा हमें बताया गया था जब हम बच्चे थे। तो हमारी कोई भी भावना होती है, वो पूरी हो जाती है। तो ये सारे जो अ, इसमें आध्यात्मिक रहस्य हैं, इससे कि जो हम साधारण इंसान से देवता बन जाते हैं। अगर मैं अपने मन को शुद्ध रखती हूँ, अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं, इ मेडिटेशन से, योग से, तो एक साधारण मनुष्य से हम देवता बन सकते हैं। देवता का मतलब है कि साधारण इंसान लेकिन दिव्य गुणों से भरपूर, उनके अंदर दिव्य गुण होते हैं। तो इन सारे सिंबल्स को जो गणेश जी के साथ दिखाए गए हैं, हमें वो देखना है, हमें अपने आप को जोड़ना है उसके साथ। जैसे मेरी आँखें गणेश जी जैसी हैं क्या? दूरदर्शी, क्या मेरे कान गणेश जी जैसे हैं? क्या मेरे हाथ जो हैं हमेशा देने के लिए ही उठते हैं? क्या मैं सही विधि यूज़ करती हूँ कोई भी काम करने से पहले? तो हमें देखना है कि मैं कौन से शब्द इस्तेमाल करती हूँ। क्या मैं इधर-उधर की व्यर्थ बातें सुनती हूँ? क्या मैं दूरदर्शी हूँ? अगर मैं अपने आप को स्वयं को देख सकूँ, आत्म अन्वेषण कहा जाता है जिसे, तो मैं किसी तरह का ये अनुभव कर सकती हूँ और मैं अपने आप में परिवर्तन को ला सकती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, जो श श्री गणेश जी हैं, तो गणेश जी जो हैं वो शिव जी के बच्चे हैं। एक ही गणेश नहीं है। शिव जो कि कल्याणकारी हैं, जो पिता हैं हम सबके, सिर्फ़ एक गणेश के ही पिता नहीं हैं, वो हम सबके पिता हैं। वो हम अपनी लाइट लेकर आते हैं, अपना प्रकाश लेकर आते हैं, हम सबके जीवन को सुंदर बनाने के लिए। हमारे जीवन को
अ, हर विघ्नों से, हर तरह की रुकावट से दूर रखते हैं। कोई भी, किसी भी प्रॉब्लम से, मुश्किलों से हमारे जीवन को दूर रखते हैं। मेरे लिए, मैं आप लोगों के साथ को ये बताना चाहती हूँ, जो हम इनसे सीख सकते हैं, गणेश चतुर्थी को मनाते हैं, हम उससे क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में? क्यों गणेश जी का विसर्जन क्यों करते हैं? इतने दिन पूजा करने के बाद ऐसा क्यों करते हैं? उसका मतलब है कि मुझे अपने आप में अच्छे गुणों को लेकर आना है, अपने जीवन में अच्छे गुणों को लेके आना है, और जो भी कमज़ोरियाँ या नेगेटिविटी मेरे अंदर है, उनको मुझे पानी में बहाना है। वो सारी मुझे पानी में प्रवाहित करनी है, जो भी कमज़ोरियाँ हैं मेरे अंदर। इसका मतलब ये है, हमारा लक्ष्य क्या है कि नर ऐसी करनी करें जो नर से नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करें जो नारी से लक्ष्मी बने। सो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो जो हमारे गुण हैं, मनुष्य वो गुण धारण करते हैं, तो वो देवी देवता बनते हैं। तो हम ये प्रेरणा लेते हैं गणेश चतुर्थी से इस बार। तो हम ये जो रूहानी मतलब है, आध्यात्मिक, हम जो सीख रहे हैं, अपने घर जाकर हम ये बातें सोचें और अपने जीवन में उसको लेकर आएँ। मैंने और थोड़े से लेसन बनाए हैं, और इसको आप होमवर्क भी कह सकते हैं। आप इस क्लास से वो चीज़ें, वो लेसन लेके अपने जीवन में उतार सकते हैं। हमेशा खोजने वाले, यानी कि ढूँढते रहें, चाहे आप जितने भी समझदार या बुद्धिमान हैं, और अज्ञानता के अंधेरे को ज्ञान से हटाने वाले, और हमें अपने आप में एक रॉयल्टी लेकर आनी है। एक जैसे कि हाथी में एक राजसी गुण आते हैं, और हमारी जो सोच, देखने की जो आँखें हैं, वो दूरदर्शी हों, और हमें ये पता हो कि अब अगले पल क्या आने वाला है, हमें पहले ही पता लग जाए, और हम सब कुछ समाने वाले हों अपने अंदर। किसी भी तरह की परिस्थिति, कोई भी तरह की रुकावट हमारे जीवन में आती है, हम उसे समा सकें। तो हम विघ्न विनाशक बन जाएं। हम हम विघ्नों से, मुसीबतों से डरे नहीं। हम अ, विघ्न विनाशक यानी मुश्किलों को हटाने वाले बन जाएं, और सही विधि यूज करें हर काम के लिए, तो हमारी सफलता निश्चित है। यदि हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हमें अपनी विधि को देखना होगा कि कौन सी विधि हम अपने जीवन में अपना रहे हैं। और नंबर 5वां, अपने आप को प्रेम के धागे से जोड़ना, जो कि रस्सी है गणेश जी के हाथ में। उसका मतलब, जहाँ पर प्यार है, हर चीज पॉसिबल है। तो हमारे अंदर और प्यार हो, प्यार बहुत ज्यादा हो और डर बहुत कम, क्योंकि प्यार के साथ डर नहीं रह सकता। और जैसे मैंने कमल पुष्प का बताया, कि जो कमल का पुष्प है, वो साफ सुथरा होता है, और हमेशा जो हाथ हैं वो देने वाले हों। कोई भी कुछ भी लेने की इच्छा नहीं हो, सिर्फ देना ही देना हो। अगर हमारे मन में किसी से कुछ भी पाने की या लेने की इच्छा है, तो वो हमारी आशा पूरी नहीं होती है। तो हमें हाथ को देखना है कि गणेश हमेशा देते हैं, ऐसा ही हमें बनना है। और हमने और भी सीखा है एक बहुत ही सरल सा लेसन,
हमने सरल सी बात सीखी है। हमें अच्छा सोचना है दूसरों के लिए, अपनों के लिए। और मैं इन 2 बातों के साथ ये बातें ये आज का बताना चाहती हूँ। कोई भी जो समस्या है वो अज्ञानता है। मुश्किल जो है वो अज्ञानता है और जो समाधान है वो बुद्धि का प्रतीक है। तो हमें रूहानी ज्ञान लेके बुद्धिमान बनना है, गणेश जी की तरह। तो अपनी बुद्धि को और शक्तियों को जगाना है, तो गणेश जी की जो गुण हैं वो हमारे में भी आ जाएँ और हम भी विघ्न विनाशक बन जाएँ गणेश जी जैसे। आज गणेश चतुर्थी का आखिर का दिन है, तो आज बहुत पवित्र पावन दिन है। तो हमें अपने आप में देखना है कि मेरे में क्या कमियाँ हैं, क्या अवगुण हैं, जिनको मुझे हटाना है, उनका दान करना है और और वरदान लेना है और उन कमज़ोरियों को पानी में डुबो देना है। वो 5 तत्वों में सारे अपने जो अवगुण हैं और कमज़ोरियाँ हैं, वो निकाल के प्रवाहित कर देनी है, ताकि मैं 16 कला संपूर्ण और गुणों से परिपूर्ण बन सकूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो बातें हमने आज गणेश जी से सीखी, जो हमारे में अज्ञानता थी वो हट जाए और हम अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर चलें और अपने आप को हम भगवान से जोड़ सकें और ज़्यादा हमें लाइट, शक्ति और प्रकाश परमात्मा से प्राप्त हो। Thank you so much, थैंक यू, Meera ओम Didi. शांति। So थैंक यू our मीरा दीदी। connection got interrupted. So if any मेरा question कनेक्शन which I थोड़ा-सा didn't हट have गया heard, था। there अगर is a कोई polite क्वेश्चन मैंने ना reminder. Just सुना हो 5 तो minutes मैं I'll उसके connect लिए again from the माफ़ी चाहता beginning. हूँ। So मेरा a कनेक्शन few 5 interesting मिनट के लिए questions हट that the गया था। participants asking. कुछ Last time क्वेश्चन हैं, Shilu प्रश्न did हैं। speak on Janmashtami. पिछली बार And शीलू she was दीदी ने very जन्माष्टमी particular. पर And बात की the थी। question is that at Brahma Kumaris, all of you keep saying that जैसे हम ब्रह्मा Krishna कुमारीज़ was में कहते was हैं in कि golden जो age. श्री He was कृष्ण the हैं lord of वो the श्री कृष्ण Satyug. सतयुग में आए थे। So can you please tell us when did Ganesh क्या आप come बता and सकती in हैं any हमें other age? कि गणेश जी कौन से युग में आए थे? लॉर्ड गणेश वो ब्रह्मचारी हैं। हम उन्हें ब्राह्मण मानते हैं, गणेश जी। तो वो एक यादगार हैं ब्राह्मण की। ब्रह्मा कुमारीज़ जो हैं गणेश जी को कॉन्फ्लुएंस एज से जोड़ती हैं, यानी संगम युग पर गणेश जी का जन्म होता है। 2 जन्म होते हैं एक ही शरीर के अंदर उनका। तो ब्राह्मणों को जैसे कहा जाता है 2 बार पैदा होते हैं, तो गणेश जी का भी ऐसा ही है। पहला जन्म उनका अलग से शरीर में था, दूसरा जन्म जो उन्होंने लिया वो एक आध्यात्मिक जन्म था। इसका मतलब कि वो इस समय पर गणेश जी आते हैं, हम उनको संगम युग में जन्मा Right, हुआ right. So मान सकते Ganesha हैं and the क्योंकि वो official ब्राह्मण answer हैं। is he is the confluence age symbol. तो Another वो गणेश question, जी जो yeah, हैं thank वो you. Another संगम युग question को a brother is प्रदर्शित asking करते हैं। एक that और प्रश्न है has जो quite a भाई few पूछ रहे PK हैं। friends, Brahma Kumari उनके brothers and ब्रह्मा sisters, कुमारीज़ के but बहुत he उनके says पास that दोस्त these हैं। PK friends of mine, they ये don't जो मेरे celebrate दोस्त any हैं, festivals. वो ये They कहते just हैं कि feel ये that कोई भी this is what needed. त्योहार So नहीं why don't मनाते you all क्योंकि celebrate the उनको ऐसा devotees and लगता why है कि don't you all do ज़रूरत puja नहीं and है। everything? That's what तो he वो is saying. भाई पूछ रहे हैं कि हम पूजा क्यों नहीं करते हैं? तो पूजा करने का जो एक उद्देश्य है वो क्या होता है?
हम अपना प्रेम जताते हैं परमपिता भगवान की तरफ। लेकिन जब हम समझते हैं इस बात को कि मैं आध्यात्मिक रूप से समझते हैं, मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि मेरी पूरी जो परिवार था, क्योंकि हम भक्ति के या पूजा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब मैं राजयोगा में आई, क्योंकि वो दिखाते हैं, क्योंकि मैंने पूछा कि क्यों एक भगवान के सूंड सूंड क्यों लगी हुई है? जब मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने माता-पिता से पूछा, तो वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्योंकि हमें ये पता नहीं था, इनका मतलब नहीं पता था। जब मैंने राजयोगा किया, तब मुझे लॉजिकली ये बताया गया, मुझे अच्छी तरीके से ये समझ में आया कि इसका क्या मतलब है, कि ये एक साइन है जो दर्शाता है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी का लॉर्ड शिवा जो कि शिव जी थे, वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो गुस्से में आकर सर को धड़ से अलग कर दें, ऐसा नहीं होता है। फिर उन्होंने दूसरा दूसरा एलिफेंट का यानी हाथी का शरीर लिया, और वो भी उस समय जा रहे थे। कैसे, मतलब उन्होंने उनका जो सर है वो एक बच्चे के सर पे लगा दिया। लेकिन अब हमें आध्यात्मिक रूप से जब मैं इसको समझती हूँ, तो मुझे ये सारी बता लगती हैं। अगर हम आत्मा हैं, मैं आत्मा परमपिता का बच्चा हूँ, जब मैं ऐसा समझती हूँ, ये ज्ञान को मैं धारण करती हूँ, तो अज्ञानता चली जाती है। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं, ये समझ में आते हैं। तो मैंने पूजा करना छोड़ दिया, लेकिन मैं अपना ये पुरुषार्थ कर रही हूँ कि मैं उनकी तरह कैसे बन सकती हूँ। और जब हमें किसी से प्यार है, तो हम उसके लिए रीति-रिवाज नहीं करते, हम वो पुरुषार्थ करते हैं, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमें क्या कह रहे हैं। हम उन्हें खुश करते हैं, उनके ज्ञान को, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतार के। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्यार नहीं है, क्योंकि अब जो हमारी भक्ति है, वो बहुत ज़्यादा ऊँची है, क्योंकि अब हम उनके जैसा बन रहे हैं। तो जो एक भक्ति की सबसे ऊँची स्थिति Beautiful. है, वो Beautiful. समर्पण है, Surrender is जो more कि हम important than करते just हैं। doing blind worship. तो जो समर्पण है, वो Another very भक्ति से intriguing बहुत question ज़्यादा is ऊपर है। और एक और why are प्रश्न all है, the important deities shown in the form of जो animal heads? So first is देवी और we've देवता discussed about हैं, the elephant head उनके of ऊपर Ganesha. क्यों The जो second है very किसी closely भी related image is of अ, Hanuman, which is shown as a monkey's face. क्योंकि So why उनके is it that ऊपर in India that all animals have जानवर का got a शरीर क्यों significance of जानवर monkeys का and Hanuman? क्यों लगा हुआ है? जैसे गणेश जी के ऊपर हाथी का सर और हनुमान जी के ऊपर बंदर का मुँह। क्योंकि जो जानवर हैं, उनमें भी बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे रामायण में आपने पढ़ा कि र कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। हनुमान जी का जन्म ठीक से हुआ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और उनका जो चेहरा था वो बंदर का चेहरा था। ऐसा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि सारे जो मनुष्य हैं इस समय, हमारा चेहरा तो इंसानों का है, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो एक बंदर की तरह है। क्योंकि बंदर के अंदर सारे विकार होते हैं। उसके अंदर मोह, लोभ, काम, विकार सभी होते हैं। क्योंकि वो आर्मी जो है, जब रामायण में दिखाई है, वो बंदरों की दिखाई है। वो बिल्लियों की क्यों नहीं दिखाई है, किसी और जानवर की क्यों नहीं दिखाई? इसका मतलब है कि जो बंदर है, वो बंदर जो है वो दर्शाता है कि हम मनुष्यों के अंदर किस तरह से सारे विकार भरे हुए हैं। तो हनुमान जी को दिखाना
जैसे कि बंदर के चेहरे में, क्योंकि हनुमान जी राम जी के बहुत भक्त थे। हनुमान जी तो थे, वो बहुत वफादार थे भगवान राम के। कोई भी मनुष्य जो पूरी तरह से समर्पित हैं, पूरी तरह से भगवान की तरफ समर्पित हैं, उनके रोम-रोम में जो है भगवान बसे हुए हैं, जैसे हनुमान में थे। जो हनुमान है, उनका जो निश्चय था, वो दृढ़ था, वो हिलने वाला नहीं था। जैसे कि अंगद का पाँव था, उसको नहीं हिला सके, उनका पैर नहीं हिला सके, उनका नेल भी नहीं हटा, क्योंकि उनके अंदर भगवान के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास था। हनुमान जी जो हैं वो असंभव को संभव करने वाले हैं। उनको कहा गया था संजीवनी बूटी लेके आने के लिए, तो वो संजीवनी बूटी नहीं समझ में आया उनके, तो वो पूरा-पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। उनके अंदर बहुत ही शक्तिशाली हैं हनुमान जी। क्योंकि उनके अंदर बहुत ही दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास भगवान की तरफ है, तो हम किसी भी तरह किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। तो हम मनुष्य, लेकिन हमारा जो एक तरह का हमारा जो नेचर है, जो हमारा व्यवहार है, वो बंदरों की जैसा है। कोई भी मंकी को देवी देवता नहीं कहा जा सकता, सच में तो ये है। Thank you so much. Beautiful. थैंक I यू was just सिस्टर। very carried away. I feel sometimes मैं in भी future we should have a बहुत अच्छा spiritual लगा कि significance of अपन Hanuman Jayanti आंसर, also. और किसी Thank you दिन for हम confirmation. हनुमान Thanks for the जयंती के बारे importance. में भी बात करेंगे, Mythological कोई हमें stories of मिले, Ramayana get और connected with the रामायण spiritual जो side. रामचंद्र जी की जो रामनवमी है Here are उसके other बारे में भी very हम बात करें, ऐसी interesting मैं आशा question रखता is हूँ। they show और भी that एक Lord प्रश्न है Ganesha used to stay on the कि जो wrist of गणेश Shiva and जी जो हैं, Parvati, rather Shankar and Parvati, we must say. He used to stay on the Kailash Parvat with both the जो parents. And his गणेश जी friends हैं were वो shown कैलाश to पर्वत complete पर रहते थे deformed शिव जी और deformed पार्वती के children. साथ। Someone was crippled, someone had only उनके one जो eye. दोस्त So, what दिखाए is the हैं वो significance of कुछ he having अपंग connected दिखाए all हैं his कि friends, like friends उनके जो with defective दोस्त थे, bodies? उनके जो थोड़े से फ्रेंड्स थे, वो थोड़े डिफेक्टिव थे, उनकी बॉडी में किसी ना किसी तरह की कमी थी। मेरे ज्ञान के अनुसार मैं ये देख कहूँगी कि दूसरों की जो कमियाँ या कमजोरियाँ हैं, वो नहीं देखनी है, उनकी अच्छे गुणों को देखना है, तभी वो तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। इसका मतलब जो मेरे दोस्त हैं, जब मेरा तीसरा नेत्र बंद है, जब मैं अपनी ही दुश्मन बन जाती हूँ, तो मुझे सभी दुश्मन नज़र आते हैं। तो गणेश जी जो हैं वो बुद्धि के और इंटेलिजेंस के को सिंबलाइज़ करते हैं, वो दर्शाते हैं बुद्धिमत्ता को। तो इसका मतलब वो उनके सभी दोस्त हैं, जिनमें थोड़ी-थोड़ी कमियाँ भी हैं। वो कमियों को ना देखते हुए उनके साथ दोस्ती को निभाते हैं। थ्योरी में भी कहा गया है कि गणेश जी का जो भाई थे वो कार्तिकेय थे, उनका नाम कार्तिकेय था। तो उनका जो सवारी है वो मोर है। ऐसा क्यों है? एक बार इस बात के बारे में बहुत बात हुई कि ऐसा क्यों है? तो उन्हें कहा गया, दोनों भाइयों को, गणेश जी और कार्तिकेय को, कि पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर लगा के आना है। जो कार्तिकेय जो थे उनके भाई, वो मोर पर बैठ के पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आए। गणेश जी ने क्या किया, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया कि तो उन्होंने कहा जो मेरी माता हैं वो ही मेरा मेरा संसार है, और उन्होंने 3 चक्कर जो हैं अपनी माता की तरफ ही लगा दिए, और उन्होंने कहा कि मैंने सारी दुनिया के 3 चक्कर लगा दिए। गणेश जी बहुत, खाली उन्हें स्मार्ट ही नहीं कहेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा बुद्धिमान कहेंगे, वाइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा। Thank you, Didi. Another
थैंक यू दीदी। और एक और प्रश्न है, दिवाली में हमें धन चाहिए होता है, तो हम धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो हम गणेश जी को क्यों का आवाहन क्यों करते हैं दिवाली के लिए? तो गणेश जी का तो हर एक पूजा से पहले गणेश जी का पूजा करते ही हैं। किसी भी देवी देवता की कोई भी हम वरदान लेने से पहले, उनके आशीर्वाद लेने से पहले, हम सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो जब गणेश जी का सर उन्होंने शिव जी ने हाथी से बदल दिया था, तो पार्वती जी ने उन्हें कहा था कि इनकी पूजा कौन करेगा? लेकिन तब शिव जी ने कहा था कि हर जगह, इवन मेरे से भी पहले गणेश की पूजा होगी। कोई भी किसी भी तरह का त्योहार होगा, गणेश जी की पूजा सबसे पहले होगी। इसलिए दिवाली पर भी गणेश जी को पूजा जाता है लक्ष्मी जी के साथ, क्योंकि वो गणेश हैं। क्योंकि वो ऑल जो कहते हैं गण यानी कि मैथ, सबके जो हैं वो देव हैं। इसीलिए उनका सबसे पहले पूजन किया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी काम हम करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश करो। किसी भी कार्य को करने से पहले कहते हैं श्री गणेश करते हैं। तो हम शिव जी को भी बाद में खुश करते हैं। सबसे पहले जो है वो बाउ डाउन, सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। एक और प्रश्न है, तो गणेश जी जब बैठते हैं तो उनका एक पैर जो है वो जमीन पर होता है और एक जमीन के ऊपर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक तो वैराग और दूसरा जो है वो लगाव और प्रेम। आप जो 5 तत्वों को यूज़ कर रहे हैं, 5 तत्वों को इस्तेमाल करते हुए भी इन सबसे जुड़े हुए नहीं हैं। इसीलिए इसीलिए गणेश जी का जो एक पैर है वो ज़मीन को टच करता है और दूसरा पैर जो है वो ऊपर होता है। तो न्यारे यानी प्यारे, यानी कि आप सपोर्ट नहीं ले रहे, आप न्यारे और प्यारे रह करके, जैसे आजकल कि जिस तरह से आजकल के मनुष्य 5 तत्वों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए वो देखते हैं कि साधन और साधना में वो अलग कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फैसिलिटी, कोई साधन नहीं भी है, तो भी वो अपनी साधना में लगे हुए हैं, यानी कि वो अलग हैं, एक प्रेम के साथ वो अलग हैं। तो ब्रदर कह रहे हैं थैंक यू। इसका मतलब खाली ये नहीं है कि पूजा ही की जाए, इसका मतलब भाई पूछ रहे हैं किस तरह से मैं अपनी कमजोर बुद्धि को अ, शक्तिशाली बना सकता हूँ। सो ज्ञान और बुद्धि से, अगर आप सच में ये चाहते हैं, अगर आप ये ढूंढ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में इस तरह का परिवर्तन लाना, तो परमात्मा से जुड़ के वो आपकी ज़रूर मदद करते हैं। तो वो आपकी मदद करते हैं आपकी तीसरी आँख को खोलने में, जो कि ज्ञान की आँख है। ऐसा कोई जादू नहीं है कि तीसरी आँख खुल जाती है, क्योंकि मैं ढूँढ रही थी उस सच को, तो मैं सच को ढूँढा, सच को पाया, अब मैं उसका अभ्यास कर रही हूँ। तो ये जो बुद्धि, जो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मुझे मिला है, जिसके द्वारा मैं समझ सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं अपने आप को देखती हूँ सबसे पहले कि मैं कौन हूँ।
क्या मेरी वास्तविकता क्या है, कि मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ और मैं यहाँ पर क्यों हूँ? ऐसे प्रश्न मेरे मन में अपने आप से आते हैं, तो हमें इन सवालों के जवाब मिलते हैं और फिर आप ये शुरू करते हैं, कैसे मेरी बुद्धि जो है वो खुलती है और तीक्ष्ण बनती है। तो अपने आप को देखते हो, परमात्मा को देखते हो, आपको पता लगता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ पर इस दुनिया में किस तरह से हो, आपको ये सब जवाब मिलते हैं। हमारे सेंटर, राजयोगा सेंटर पर ये सब हम सिखाते हैं, बताते हैं। तो जब आपके अंदर एक जो एक क्योंकि आत्मा की जो शक्ति है वो अभी बहुत कम है। जब उसके अंदर हम ज्ञान का तेल डालते हैं तो वो तेज से जलने लग जाती है फिर से। तो वो ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारे लिए। A very humorous question, very closely एक related और to just what you प्रश्न said है right now. Can I become इसी Lord से Ganesha संबंधित, by following the Brahma Kumaris? क्या मैं गणेश बन सकता हूँ ब्रह्मा कुमारीज़ को फॉलो करके? इसका क्या मतलब है, गणेश बनने का क्या मतलब है? वो जो हैं वो बुद्धि के देवी देवता हैं और एक शुभ विनायक हैं, उनको कहते हैं। तो यही तो हमारा लक्ष्य है। हम बनना चाहते हैं, विघ्न विनाशक बनना चाहते हैं, सुखकर्ता बनना चाहते हैं, सिद्धि विनायक बनना चाहते हैं। यही तो हमारा लक्ष्य है। पहले अपने आप को हम संपूर्ण करते हैं, फिर उसके बाद Okay, हम great. दाता बनते And हैं। in interest of time, I'll just take the last question. और मैं Lord अब ये Ganesh है आखिरी Siddhi प्रश्न लेता Vinayak, हूँ। as we are saying that we have तो many जो people joining from Mumbai. लॉर्ड गणेश हैं Famous वो temple सिद्धि and it's very विनायक हैं। famous. There's a big rush of एक all the बहुत devotees to बड़ा join वहाँ there, पर मंदिर है particularly सिद्धि these विनायक 10 का। days. So, आज के ये जो 10 brother दिन is गए हैं asking इसमें वो बहुत in बिज़ी relation to रहता है। success because he's the Lord of प्रश्न success. पूछ रहे So, do हैं you कि want वो to share some एक stories सिद्धि of your विनायक हैं। success, personal success? That तो how was ब्रदर your पूछ रहे journey हैं from कि before coming to आपकी Malaysia? आपको क्या सफलता मिली है? आपकी यात्रा कैसी रही? आप क्या बताएँगी ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़कर क्या प्राप्ति हुई? मैं 1 मिनट में कह सकती हूँ, मेरी कहानी काफ़ी लंबी है। सिद्धि जो है, जो सक्सेस है, सफलता है, वो विश्वास से है। विश्वास, दृढ़ता जो है, वो सफलता की कुंजी है। जैसा जैसे मैंने अपनी यात्रा शुरू की, सो डिटर्मिनेशन और टर्मिनेशन, यानी कि जब मेरे को ये दृढ़ता आ गई तो फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप ये दोनों चीज़ों को पकड़ के चलते हो, विश्वास और दृढ़ता को, तो सफलता तो निश्चित है ही है, Yeah, जो मेरी that's अपनी great. पर्सनल And कहानी है। just my question in the end एक और is क्वेश्चन actually है talking मेरा, about Riddhi and Siddhi. Riddhi. रिद्धि और You सिद्धि के mentioned बारे में, about जैसे Riddhi, which आपने is the method. बताया, So is there something विधि called का Riddhi मतलब as है, well? आपने बताया मेथड, रिद्धि का मतलब जो एक शक्ति है, तो उससे पता लगता है कि चीज़ें किस तरह से आप उनको, रिद्धि का मतलब एक तरह का विधि से प्राप्त करने का है, लेकिन उससे कोई प्राप्ति नहीं होती है। और लेकिन हम कोई थोड़ी देर के लिए अल्पकाल का हमें कोई प्राप्ति नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य है स्थायी प्राप्ति का। तो जो रिद्धि नहीं, हमें हमें सिद्धि चाहिए। रिद्धि का मतलब है कुछ जादू करके आप थोड़ी देर के लिए कुछ पा सकते हैं, लेकिन वो एक साफ अभ्यास नहीं है। क्योंकि हम एक साफ अभ्यास करें, पुरुषार्थ करें, तो अगर बिना पुरुषार्थ के तो कोई भाग्य भी नहीं बनता। तो कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें हमें Right. I सही just विधि see से quite a few questions coming in Hindi, but sorry, एफर्ट participants, I करने हैं। can't take them anymore. So मैं thank you और so much, प्रश्न Didi. नहीं And ले with this, सकता, I would सॉरी। like to invite Dr. Ashok थैंक यू। Mehta.
और अब मैं अशोक मेहता डॉक्टर अशोक मेहता को निमंत्रित करूंगा, वो आकर कुछ शब्द कहें। ओम शांति। मीरा बहन, बहुत सुंदर ही ये सुबह है आज की, जो हम आपकी बातों का आनंद ले रहे हैं। जो सबसे विशेष भाग रहा, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हम सब कुछ सुन रहे हैं, ये ज्ञान ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान है वो परम पिता का है, जो हम मनुष्यों को ये ज्ञान दे रहे हैं। जो भी हम सुनते हैं, मीरा बहन से जो हमने सुना, ये जो ज्ञान है वो सीधा परम पिता से आ रहा है। ये जवाब जो है वो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। ये सारे जवाब जो हैं वो परम पिता के दिए हुए हैं। मुझे ऐसा ये मेरा विश्वास है। जो मैं गणेश चतुर्थी पे आज हमने ये सुना, ये बहुत ही बुद्धिमान के और ज्ञान के शब्द थे जो आपने कहे, बट ये परमपिता की सीधी आवाज है। थैंक यू सो मच। बहुत ही आनंद आया आपकी आवाज सुन के, और आपसे हम और भी आगे सुनते रहेंगे। आपने सभी प्रश्नों का जवाब बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही अच्छे तरीके, सरल तरीके से दिया। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। Thank you so much, धन्यवाद Dr. बहन। Mehta. And Meera थैंक Didi, we are यू। not leaving you. Ram Navami and Hanuman Jayanti is still हाँ, there. हम मीरा Just बहन, find out which is रामनवमी available भी and आ put रही your है और dedication by हनुमान signing जयंती the भी है, declaration. तो आप ज़रूर And आइएगा just और हमें inform me और when the भी meditation बताइएगा next इसके 2 बारे minutes. में। I'll just quickly इससे share my पहले कि हम screen and say what मेडिटेशन events पर will be जाएँ, coming up. मैं So बताना that all of चाहूँगा us कि know और that we कौन are से प्रोग्राम्स आने वाले हैं, discussing Ganesh Chaturthi, everything about success. So we were जो अब हम supposed to have सफलता this के बारे में conference बात with कर रहे Brishawan थे। Bhai Sahab तो yesterday, ब्रिजमोहन भाई but साहब के साथ he had some कल other जो commitments प्रोग्राम at the था, same time. वो So we हमारा said बदल we were के अब opting to do a recorded सोमवार को session, but होगा। we said no. We would like to interact with you, and you all are very fortunate that तो वो tomorrow रिकॉर्डेड we are लेसन having नहीं देना it will चाहते be थे, a 1 hour वो 15 हमसे minute session सीधे directly, देना and चाहते we'll be हैं। answering all the in a question and answer format तो उनका जो according to ये me, सेशन because he होगा said he wants वैल्यूज to फॉर interact with लाइफ, the audience एपिसोड 22वां tomorrow. सक्सेस के And please ऊपर। note down that the ये timings are slightly सोमवार को different. होगा, 20 Normally it's सितंबर 7:30 को। p.m. on Saturdays, but we are doing it tomorrow 6:30 p.m. तो And यहाँ वेस्ट कोस्ट के Ganesh हिसाब Ji's से post time is 6 in the यहाँ पे morning. So make sure you all can सुबह attend it. 6 But बजे it's a होगा, morning day और tomorrow from इंडिया के 5. हिसाब से But रात को it's साढ़े an 6 बजे होगा। awards-related बट atmosphere ये where we need बहुत अच्छा success. So it's प्रोग्राम not a है। plan to इसमें मतलब showcase कि success during your हम working अपने कर्म schedule. में किस तरह से So please make sure सफलता you ला attend सकते this. हैं, तो हम And सभी को for any आमंत्रित other करते हैं ये information, if you're प्रोग्राम interested, ज्वाइन but I करने cannot के take लिए। on the other events, we'll be sending emails out to you. You और can हम visit our ईमेल्स website of भेजते रहेंगे। vihasa.in आप and हमारी वेबसाइट देख brahmakumaris.in, सकते हैं, and you can विहासा email us at the following email addresses. @brahmakumaris.org, So with this, I'll और just end the प्रोग्राम्स sharing के and लिए। over to Didi for the last 5 and 10 minutes on meditation. अब मैं फिर से मीरा दीदी को कहूँगा कि वो हमें मेडिटेशन कराएँ। तो आप सब आराम से बैठ जाएँ और अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा करके आराम से आप अपनी आँखें खुली रख सकते हैं या बंद, जैसे आपको अच्छा लगे। इस मेडिटेशन का लक्ष्य है अपनी आंतरिकता को जगाना, अपने आप को जानना, जो कि अंदर सो रही है बहुत देर से, उस आंतरिक शक्ति को जगाना। किस तरह से मैं इसे दोबारा से जगा सकती हूँ? मुझे अपने आप से ही ये प्रश्न पूछना है, मैं कौन हूँ? मैं सच में कौन हूँ? क्या जवाब मैं अपने आप को देती हूँ इस बात का, जब मैं अपने आप को दूसरों से मिलती हूँ, तो मैं दूसरों को क्या बताती हूँ, मैं कौन हूँ?
मैं अपना नाम बताती हूँ, अपना ओहदा बताती हूँ, अपने रिश्तों के बारे में बताती हूँ। ये सब जो हैं, ये सारे लेबल्स हैं जो मेरे ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन मैं वास्तविकता में मेरी वास्तविकता क्या है? वास्तव में मैं कौन हूँ? जब मैं अपनी गहराई में जाकर ये सोचती हूँ, मैं देखती हूँ एक और लेयर जो है मेरे अंदर से एक नई चेतना निकल रही है। मुझे महसूस होता है मेरे में मेरे में यादें हैं, मेरे में इमोशंस हैं और मेरे में अनुभव हैं। ये सब मेरे अंदर हैं। ये सब मेरे अंदर समाहित हैं। ये सब कुछ मेरे अंदर जो एक ऊर्जा है, उसके अंदर समाहित है। एक जो जीवित ऊर्जा, एक लिविंग एनर्जी मेरे अंदर है, जो कि मैं महसूस कर सकती हूँ, मेरे माथे के बीच में है। इस एनर्जी को, उम, इस ज्योति को महसूस करें। ये एनर्जी, ये ऊर्जा अपने माथे के बीच में, फ़ोरहेड के बीच में महसूस करें। मैं एक जीवित ऊर्जा हूँ, लिविंग एनर्जी हूँ, जिसमें मन, बुद्धि और संस्कार हैं। मैं मैं एक जागती ज्योति हूँ। मैं हमेशा से हूँ। मैं अचल, अडोल, अविनाशी हूँ। मैं अपने सोच को देखती हूँ। मैं अपनी सारा ध्यान इस एनर्जी की तरफ केंद्रित करती हूँ। एक अंदर की तरफ यात्रा पर जाती हूँ। मैं अपने अंदर बहुत गहराई में जाती हूँ। मैं इस ऊर्जा को, इस ज्योति को महसूस कर सकती हूँ। मैं मैं ज्योति हूँ। शांति के प्रकंपन अंदर से मेरे से निकल रहे हैं और मेरे मन को भर रहे हैं। मैं बहुत सुखद अनुभव कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने साथ हूँ इस समय और बहुत शांति है। साइलेंस का अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन एक शांत झील की तरह है। मैं सुखद अनुभव कर रही हूँ इस समय। इस अनुभव में मैं बहुत हल्केपन की महसूसता कर रही हूँ।
मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत हल्केपन का अनुभव हो रहा है। मैं इस शरीर से अलग हूँ। मैं अपने आप को तैरते हुए देख रही हूँ, इस शरीर से ऊपर और ऊपर जा रही हूँ। इस दुनिया से परे, 5 तत्वों के पार, जहाँ पर सुनहरा प्रकाश है। मैं मैं एक ज्योति, शांति से भरपूर। मैं अपने घर में हूँ, शांति धाम में। मैं मैं शांति के सागर के सामने हूँ। मैं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं उस सुप्रीम से जुड़ी हुई हूँ, जो कि मेरे ऊपर शांति की किरणों की वर्षा कर रहे हैं। प्रकाश की किरणें, जो कि प्रेम और शक्ति से परिपूर्ण हैं। मैं आत्मा, मैं इन परमपिता की किरणों में नहा रही हूँ। और अब और इस अनुभव में, इस इस समय को मैं बहुत सुखद अनुभव कर रही हूँ। शांति, एकदम हर तरफ शांति, साइलेंस। मैं अपने आप को बहुत ही रिफ्रेश, हल्का और ताज़ा महसूस कर रही हूँ। मैं अपने आप को रिचार्ज महसूस कर रही हूँ भगवान की एनर्जी से। और धीरे से मैं अपने आप को अपने आप को शांति धाम से लेकर आती हूँ। इस 5 तत्वों की दुनिया में मैं अपने आप को देखती हूँ। अपने आप को अपनी माथे के बीच में देखती हूँ। अपने आप को महसूस करती हूँ परमपिता की रोशनी और शांति को बिखेरते हुए। मैं पीस, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मैं ज्योति स्वरूप हूँ। प्रेम और शांति स्वरूप हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Thank you so much, Didi, once again to spend your time with us. Thank you. थैंक यू दीदी, आपका समय के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।